Hey everyone, welcome back to Neat Shots. My name is Akriti Goyal. I'm a BITS planning engineer and I just cleared my NEET 2021. And today I have a very special guest, Niyati Singla. Hi Niyati. Hello. So Niyati basically cleared NEET 2021 and she has got an awesome score of 682 and her rank is 763. Congratulations Niyati. Very, very hearty congratulations to you. And given that we are batchmates, I'm very excited. So which college have you been allotted, Niyati? Would you please like to tell all the people here? Thank you. Firstly, I have been allotted AIMS Rishikesh in the first round. I'm waiting for the second round result. Let's see what happens. Wow, amazing. Actually, I also wanted to come to AIMS Rishikesh, but I don't have that kind of rank to basically come You're there. going But to AIMS Raipur, equally good. but Rishikesh is better, isn't it? Like it's so beautiful. So, anyways, so Niyati, I always admire people who basically work hard and have great stories to tell. So, I want to ask you, uh, what were the major challenges in your NEET journey? If you can basically share, ताकि बाकी लोग जो सुन रहे हैं, उनको थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है, they can relate to your story. So, please बताएंगे आप कि what was your biggest challenge? So I basically joined my coaching in class 9th अच्छा. in a local coaching institute only, and I continued till +2 there. So थोड़ा +1 +2 में सबसे बड़ा चैलेंज तो मुझे लगता है बर्नआउट का आता है सबके साथ, when you have been doing it since so long, और फिर थोड़ा और again the other issue I think will be consistency maintain करना. तो आपने consistency कैसे maintain की? It was difficult obviously, but test regularly देते रहना. This is something I think सबको करना ही चाहिए. Absolutely. मैं तो ये सबको Regular. चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती हूँ कि टेस्ट दिया करो. तो जब आपके कभी टेस्ट में कम नंबर आते थे तो आपको डिमोटिवेटेड फील होता था? हाँ, होता था बहुत ज्यादा. तो Like inorganic chemistry. फिर भी आप टेस्ट क्यों देते थे, ये बताइए सबसे पहले तो, अगर आपके क्योंकि नंबर आते थे तो भी. उसी से ही इम्प्रूव हुए ना आगे. अगर पहले खराब आए, बीच में ये नहीं था कि हमेशा खराब आ रहे हैं, कभी अच्छे भी आए, कभी बुरे मार्क्स भी आए, बट देन बुरे के साथ यू कैन नॉट स्टे विद दैट फॉर लॉन्ग ना, अदरवाइज फिर कभी अच्छे दोबारा यू विल नॉट सी. अगर बुरे एक टेस्ट बुरा आ गया एंड देन यू स्टॉप गिविंग द टेस्ट, देन यू विल ऑलवेज रिमेन विद दोस बैड मार्क्स ना. Okay, so what were your mock test scores, Niyati? Like when you started and full test की बताइए, and when you finished towards the end. जब इनिशियली फुल टेस्ट देते थे अराउंड आई थिंक February के अंदर I started giving full test for the first time, and उस वक्त जो scores आते थे they used to be around 600 610 के around. And by the end जब August आ गया था, तब जब full test आते थे तब scores would be around 670 680 to sometimes अगर ज्यादा अच्छा हुआ तो 700 like that. Okay, and आपके tests largely NCERT based होते थे? या मोस्टली ये भी होता है ना, कोचिंग्स के अंदर जनरली टुवर्ड्स द एंड ही वो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट डालना शुरू करते हैं. इनिशियली जो टेस्ट होते हैं वो इतने एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होते, सो उसमें थोड़े मार्क्स कम आते हैं, बट देन टुवर्ड्स द एंड इट्स completely NCERT. Okay, sorry, I forgot to ask you, Niyati, where are you from? I'm from Patiala, Punjab. Okay, great. So, Niyati, like एक चीज बताइए कि मतलब was there a time जब आपका बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता था, मतलब बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं कर रहा है, तो आप उसको कैसे टैकल करते थे? How did you handle the stress and the demotivation? I think this is very important for people who are seeing this, and I'm sure a lot of people will relate to your journey. तो ये प्लीज बताइए. So ये टाइम मेरे साथ आई थिंक वाज अराउंड जून जुलाई, अगस्त के अंदर एवरीवन वाज वर्किंग वेरी हार्ड सिंस सितंबर में नीट था ही, बट जब ये जून का फेज था उस वक्त तक ऑलरेडी डिले बहुत ज्यादा होता जा रहा था, एंड यू डिड नॉट हैव एनी सर्टेन डेट. पहले एक बार आ रहा था कि मे बी अगस्त के अंदर हो जाएगा, सो बट देन वो भी नहीं हुआ और डिले, कोविड की वेव्स आई जा रही थी एंड ऑल. सो दैट वाज द टाइम आई थिंक जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन भी था, एंड तब मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था फॉर सम पीरियड. बट उसके दौरान आई ट्राइड गिविंग टेस्ट. अगर मेरा रीड करने का दिल नहीं कर रहा था देन आई वुड ट्राई कि चलो सॉल्विंग हो जाए, क्योंकि व्हेन यू
solve a test, उन 3 hours में भी आपने 180 questions solve किए ही हैं. बिल्कुल. So that is enough of a practice. This is तो a nice idea actually कि अगर पढ़ाई का मन नहीं करे तो टेस्ट दे दो. yeah, you will be able to solve 180 questions in 3 hours. जो actually हम वैसे जाए practice करने के अगर 3 घंटे बैठे तो 180 होते नहीं है, पर टेस्ट के नाम पे 180 questions हो जाते हैं. Correct. So that is one thing. बाकी जैसे मुझे फिजिक्स पर्सनली ज्यादा पसंद है देन बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, सो आई वुड ट्राई कि मैं फिजिक्स कर लेती थी उस दौरान, So या अगर बायो को. सॉरी, why didn't you try engineering? Like क्योंकि मुझे बायो भी पसंद थी साथ में. So how did you I did not decide want to. between bio engineering and medicine? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा एक डाउट होता है for people who like physics. Yeah, मुझे हाँ फिजिक्स वाज वन थिंग दैट रियली आई वांटेड टू गो फर्दर इनटू, बट अगेन बायोलॉजी भी मुझे पसंद थी. मुझे मेडिसिन के अंदर भी करियर ज्यादा लगा कि अच्छा रहेगा. देन मैथ्स से ज्यादा आई थिंक मुझे बायो ज्यादा पसंद थी. सो इसलिए What doctor do you want to become, Niyati? अभी नहीं, आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट येट. अच्छा, I would like to spend 5 years first exploring all different fields and then decide. Makes sense. So do you have other doctors in your family? Like was it something that was बचपन से आपके दिमाग में था कि डॉक्टर बनना है, या फिर it was something that was completely your own decision? My father is a dentist, but I don't think it was कि family के कारण कुछ ऐसा था. It was my decision only. मतलब बचपन में तो सबका चेंज होता रहता है ना, कभी किस कुछ बनना है, कभी कुछ बनना है. So Niyati, did you strictly follow NCERT या फिर आप बाहर की चीजें भी पढ़ते थे? Majorly NCERT, but then coaching के notes होते थे, and like HCV करना, since मैंने बोला मुझे physics पसंद थी, तो HCV was like pleasure doing, you know. तो वो किया. केमिस्ट्री के लिए एंड बायोलॉजी के लिए मोस्टली आई स्टक टू एनसीईआरटी. बायो की एनसीईआरटी के बाहर करने का कोई यूज नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं. सो आई रिमेम्बर +1 के अंदर नोट्स बहुत ज्यादा बनाए थे, बट उनको कभी नहीं दोबारा खोल के देखा, क्योंकि वो पॉइंटलेस होता है एक्चुअली. किताब पढ़नी पड़ती है. कितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी आपने? बायो की कुछ 10 to 15 टाइम्स, और फिजिक्स के एनसीईआरटी नहीं मैंने ज्यादा. फिजिक्स के एनसीईआरटी आई थिंक 1-2 टाइम्स पढ़ी है. केमिस्ट्री में around 6 to 7 times. Okay, fair enough. And what was your weakest subject in या topic, या मतलब सबसे weak क्या था आपका overall? मेरी overall out of the 3 subjects chemistry सबसे ज्यादा weak थी. Okay, and आपने सुधारा? दोबारा एनसीईआरटी पढ़ के, like I had a lot of problem learning in organic chemistry. तो फिर उसको बारी करके I tried making my own short notes. तो फिर उनको जैसे एक बार बारी एनसीईआरटी इज वेरी लॉन्ग, तो कभी एक बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, दूसरी बार एनसीईआरटी पूरी पढ़ी, और फिर उसके नोट्स बना लिए थोड़े शॉर्ट में, एंड देन यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग दोस नोट्स आल्सो, अगर एनसीईआरटी बारी ना पढ़नी हो किसी ने. ओके, एंड लाइक आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था? व्हेन डिड यू स्टार्ट रिवाइजिंग? ये थोड़ा आप बताएंगे डिटेल में, बिकॉज आई थिंक दिस इज अ टाइम व्हेन पीपल नीड टू स्टार्ट रिवाइजिंग, सो दिस विल बी वेरी रेलेवेंट एज इंफॉर्मेशन फॉर पीपल हु आर वाचिंग दिस. सो हमारे सिलेबस खत्म हो गए थे अराउंड दिसंबर के अंदर. सो आफ्टर दिसंबर वी हैड अ टेस्ट ओनली. सो रिवीजन हमारी शुरू हुई थी इन जनवरी, बट वो थोड़ी तब पार्ट टेस्ट की फॉर्म में चल रही थी, लाइक 2 to 3 months थे पार्ट टेस्ट. उसके बाद द फुल टेस्ट जो थे उनको आई बेसिकली केप्ट बोथ गोइंग टुगेदर. मतलब ये नहीं था, देयर वाज नॉट अ टाइम दैट व्हेन आई वाज डूइंग ओनली फुल टेस्ट. पार्ट टेस्ट मैंने थोड़े कॉन्टिन्यूशन में रखे थे, सो दैट पूरा सिलेबस का भी टेस्ट हो रहा है, एंड देन यू कैन जो जैसे फुल टेस्ट के अंदर जिस टॉपिक से मिस्टेक्स आ रही हैं, this topic, you know, I always kept a register in which I would write all the chapters, जिसमें मेरी like a frequency chart कि किस chapter से कितनी बार गलती हुई. That really helped me find out the topics or the chapters specifically जिनके अंदर मेरी गलतियां ज्यादा होती हैं, and then I would revise those chapters. हर टेस्ट को एनालाइज करते थे कि इस चैप्टर से कितनी गलती हुई, ऐसा करते थे? Yeah, towards the this was for the last 3 months I suppose, जब मैंने हर टेस्ट का frequency chart बनाया था. Very interesting.
सो लाइक उससे क्या होता है कि जैसा फुल टेस्ट दे रहे हो, लेकिन फुल टेस्ट को क्या, फुल टेस्ट तो ऐसे अगर आप दे जाओगे तो उसमें पिन पॉइंट जो गलती अगर आपने एनालाइज नहीं किया तो यू विल नॉट गेट इट. सो वंस यू गिव अ फुल टेस्ट, then you analyze the test, see which chapter you are doing wrong, and then give a part. First revise that chapter, give a part test for that chapter, and then give next full test. So I think उससे आपका score improve हो जाएगा full test के अंदर. Great tip. Thank you so much. I think this will really help people because I think people don't analyze their mistakes. वो देते जाते हैं, उनको ये realize नहीं होता है कि they have to basically step back and see कि कहाँ गलती हो रही है, you know, and उसको correct करना बहुत जरूरी है. I think this is amazing tip. Thank you so much, नियति. और क्या आपने स्पेशली किया था रिवीजन के वक्त, एंड हाउ डिड यू बेसिकली, वर यू कॉन्फिडेंट कि आप नीट क्रैक कर पाओगे? I was confident. I would not say I was not confident, but again there were phases जब confidence बहुत low भी हो जाता है. I gave all the JEE mains exams also. So I was at some point I was thinking, should I go switch to engineering now? नीट कैसा होगा? अच्छा, फिर आपने, तो आपका JEE मेन कैसा हुआ था? It went well. मेरे 98 percentile थे in JEE mains. एडवांस दिया था आपने? नहीं, मैंने एडवांस नीट के बाद था. So at that time I was already in that phase कि you know now it's all done, let's relax. So फिर मैंने तब एडवांस दिया. तो आपने अपना स्कोर वगैरह चेक किया होगा, आई एम गेसिंग, थ्रू द जो भी ऑनलाइन कीज आती हैं, जो भी कोचिंग की कीज आती हैं बिफोर NTA पब्लिश द रिजल्ट. Yes. अच्छा, तो आपका स्कोर मतलब आपको सेटिस्फाइड लग रहा था या फिर यू फेल्ट यू कुड हैव डन बेटर? व्हाट वेंट रॉन्ग इन द एग्जाम? कहाँ पे बेटर कर सकते थे? NEET, you are talking about NEET, right? फाइनल डे. Yeah. So मुझे लगता है फिजिक्स में there were actually silly mistakes majorly जो मैंने की. और which is the most pinching part when you know the answer but you still make it wrong. तो आपका फाइनल डे पे एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या था नियति? कैन यू प्लीज शेयर हाउ डिड यू एग्जैक्टली अटेम्प्ट द पेपर? व्हाट सीक्वेंस डिड यू फॉलो? व्हाट लॉजिक डिड यू फॉलो? एंड ऑल्सो एग्जाम के बीच में जब आपके नर्वस मोड्स थे तो व्हाट डिड यू टेल योरसेल्फ टू गेट बैक ऑन ट्रैक? द टू थिंग्स आई वुड लाइक टू नो. So firstly, the exam sequence was biology, chemistry, physics. ऐसा क्यों था? And biology, I thought it was easy, you can solve all the 90 questions in 30 minutes. So उससे एक pressure निकल जाता है कि you have so many questions left to do. पहले 30 minutes में you can easily score well. एक तो biology में NCERT based होती है, so ज़्यादा calculation भी नहीं करती. You can get going through it very quickly. हाँ. टिक 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 करके बस आगे हो जाएगा, आपका निकल जाएगा सारा. कॉन्फिडेंस भी देन कि हाँ इतने सारे सवाल कर लिए, आ भी गए, आसान भी था, तो चलो ठीक है, मोरल बूस्ट. हाँ, अगर अभी तक ठीक चल रहा है तो आगे भी होपफुली ठीक ही चलेगा. थोड़ा ऐसी फील हो जाती है ना, देन यू फील इजी. राइट. और नेक्स्ट आई स्टार्ट विद केमिस्ट्री एंड देन फिजिक्स एट एंड. इसका सिंपल रीजन इज कैलकुलेशंस एंड जिसमें ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस होंगे, सॉल्विंग दोस एट द एंड. And then I would solve the paper in 2 rounds. पहले वो सारे questions जिनके अंदर कम कैलकुलेशन हो. लाइक इफ आई रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, मुझे थोड़ा आइडिया हो रहा है कि ओके ये मुझे पता है कैसे होना है, आई डू नॉट हैव टू थिंक अ लॉट फॉर इट, और ज्यादा कैलकुलेशन भी मुश्किल नहीं है, देन आई वुड डू इट इन द फर्स्ट राउंड. बट इफ आई थिंक कि नहीं इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है क्वेश्चन को करने के लिए, देन आई वुड स्किप इट देयर एंड दैट सेल्फ एंड मूव फॉरवर्ड. फिर उसको सेकेंड राउंड के अंदर करती थी मैं. ओके. एंड एग्जाम में पैनिक कुछ हुआ कभी कि अरे शिट नहीं आ रहा, शिट, ऐसा कुछ हुआ? या पैनिक तो बहुत हुआ था. नीट के खुद के दिन पैनिक बहुत ज्यादा था. वी ऑलवेज एक्सपेक्ट, ऐसा बोला जाता है नीट की फिजिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी. इट वाजंट लाइक दैट. इतनी इजी भी नहीं थी. देयर वर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस इन द स्पेशली सेक्शन बी. क्वेश्चंस अच्छे थे यार, है ना? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चंस अच्छे थे. फिजिक्स के क्वेश्चंस मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ था, जो मेरा फर्स्ट राउंड होता है उसमें फिजिक्स में कोई निकला, बहुत कम क्वेश्चंस निकले थे उसके अंदर. आई वाज लाइक इजी आ ही नहीं रहा कोई, सबके अंदर ही कैलकुलेशन है. There was, I remember one logic gates question जिसका 000 था, I think, या कुछ 1 I was also like ये कैसे हो सकता है?
That was a very nice question. Section B questions especially were very nice in physics. तो तब जब मेरा पेपर बहुत बड़ा था एंड क्वेश्चंस अभी पढ़े थे बट टाइम इतना नहीं था, सो दैट वाज वन पॉइंट जो बहुत पैनिक हो गया था पेपर के अंदर. कैसे फिर उसको टैकल किया ये बताओ. हाउ डिड यू बाउंस बैक? क्योंकि कभी कभी वो एक स्पाइरल होता है जिसमें हम नेगेटिविटी स्पाइरल में चले जाते हैं. आई रिमेम्बर दिस हैपेंड विद मी इन जेईई कि मतलब मेरा थोड़े से सवाल नहीं आ रहे थे एंड मैंने अपना पूरा पेपर स्क्रू कर दिया था 2010 and it was a disaster. So how did you basically overcome that nervousness during the test? कि ठीक है कोई बात नहीं. What did you tell yourself? What worked for you? आई थिंक मैंने ये सोचा था कि अगर मेरे से भी नहीं हो रहा है, मुझे मुश्किल लग रहा है, देन इट इज गोइंग टू बी मुश्किल ओनली. मतलब ऐसा नहीं है कि मुझसे हो ही नहीं रहे हैं कुछ, सबसे ही नहीं हो रहे होंगे. I think this was helpful, and I was like, okay, let us calm. I literally stopped for 2 minutes, had water and all, और फिर then I was like, okay, let's get back calmly. कुछ नहीं होता, हो जाएगा. And then धीरे धीरे जब थोड़ा किया सोच के अच्छे से कि इतने, क्योंकि you know they were difficult language used actually. उसको अगर आप थोड़ा दोबारा से आराम से पढ़ना, किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर जनरली किसी और टेस्ट में भी अगर नहीं हो रहा है, लीव इट फॉर द मोमेंट, मूव फॉरवर्ड और फिर उसके बाद वापस आओ. यू विल बी एबल टू डू इट. Agreed. I also keep telling people कि छोड़ दो उसको. उस वक्त मेरे साथ भी बहुत होता था कि नहीं समझ आ रहा और दोबारा में एकदम से समझ में आ जाता था कि अरे ये तो हाँ बिल्कुल मतलब क्यों टेंशन ले रही थी मैं इसका. Agreed, totally. बिल्कुल. हाँ तो वो बाद में दोबारा जब तो वो क्वेश्चंस फिर भी हो रहे थे. Okay. And then I was able to still get back. Got it. तो नियति, what was your schedule for the last 2 years? मतलब generally लोगों को scheduling बहुत issue आता है. How did you partition your day between physics, chemistry, bio? And generally आपका overall schedule कैसा रहता था? Sleep cycle कैसा रहता था? लोगों को लगता है कि सुबह 4 बजे उठने से शाम को 6 बजे सोने से या जो भी होता है ऐसा. What was your schedule? Actually मैं ज्यादा रात को ही पढ़ती थी. I could not wake up early in the morning. Very difficult for me. तो मैं रात को 2-3 बजे तक आराम से I can wake up, but सुबह नहीं. सुबह 4 बजे वाला I had tried. Actually, everyone should try all the patterns. Whatever works best for them. I agree. So मैंने वो भी ट्राई किया था 4 बजे वाला, but it did not. I tried for a week, but वो बिल्कुल it was a complete failure. मुझे सारा दिन नींद आती रहती थी उसके बाद. So I went back to मेरा रात का schedule only. और how many hours did you study? Initially, I think +1 +2 के अंदर was around 8 to 10 hours. बाद में आते आते 12 was max. मैंने कोई 16 घंटे कभी भी नहीं हुआ. Okay. Towards the end you mean कि जब revision कर रहे थे आप तो 12 घंटे के आसपास. And रोज आप तीनों subjects पढ़ते थे? कैसे होता था? How did you manage your timetable? कुछ timetable बनाया था या फिर can you tell me more about that? थोड़ा there wasn't a very fixed timetable कि इससे इसके अंदर ये पढ़ना है, इसके अंदर ये पढ़ना है. Nothing like that. मतलब fixed timetable होना चाहिए और हाँ. पता नहीं है then. No, I was completely random. मेरा जिस दिन जो करने का दिल कर, I would start doing it. Okay. And मतलब थोड़ा इतना सा लास्ट में ये रहता है, अगर बहुत ज्यादा रैंडम दो, so you can miss out on some part. तो इतना जरूर होता था कि ये टॉपिक, क्योंकि अभी जैसे जो एनालिसिस करके निकला कि इस टॉपिक के अंदर अभी वीकनेस है, इसको पूरा करना है. So I would keep it in mind कि चलो आज के दिन में मुझे ये टॉपिक्स पूरे करने हैं, बट उसका ये नहीं होता था टाइम टेबल के अंदर कि इस टाइम पे मुझे ये टॉपिक करना है या इस वक्त ये. जिस वक्त दिन के अंदर फिजिक्स करने का दिल किया वो किया, जब बायो, दैट वाज कंप्लीटली रैंडम. And did you also have a think कि मतलब मुझे इतने घंटे में करना ही है और मतलब बैकलॉग क्रिएट, आपका कभी बैकलॉग था in general? And था +1 में बहुत बैकलॉग था. And how did you deal with the backlog? This will be very helpful for all the people watching here. Like बैकलॉग को आपको डिवाइड करना पड़ेगा into segments, which is the one which is actually causing problem. कि अभी वो बैकलॉग है तो उससे आपको प्रेजेंटली जो आप काम कर रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है. सिंस कई बार फिजिक्स में कोई पुराने चैप्टर्स के रेफरेंसेस होते हैं, बट वी हैव नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ दैट प्रीवियस चैप्टर, जिसके कारण अभी नए चैप्टर में भी दिक्कत आ रही है. बट कुछ बैकलॉग इज जस्ट लाइक कि ओके उससे कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, बट हाँ ऑब्वियसली यू हैव इट इन योर माइंड कि वो पेंडिंग है. सो फिक्स इट इनटू प्रायोरिटी लिस्ट.
कि कौन सी सबसे ज्यादा, अगर इनिशियली कुछ बहुत इमरजेंसी के अंदर आपको चाहिए ही चाहिए, तो पहले आप अपना थोड़ा प्रेजेंट काम होल्ड पे रख के उसको पूरा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन अपना साथ में जो कोचिंग या जहाँ अगर आप खुद भी कर रहे हैं, तो जो प्रेजेंटली चल रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको भी करते रहो। साथ में एवरीडे यू कैन डिवोट एन आवर और टू टू द प्रीवियस जो बैकलॉग पड़ा है उसकी तरफ। Basically divide and conquer. You basically divide या it into bits and then you do it part by part. Okay. Anything else, Niyati, you want to share? मतलब anything, any message for all the 2022 and 2023 aspirants जो आप बताना चाहोगे, उनको आपकी तरफ से एक closing line. I would like to say, don't give up. Don't give up on yourself. कि अगर मुझसे नहीं हो रहे टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ रहे, डोंट गिव अप एंड डोंट गिव अप ऑन योर इंटरेस्ट, नॉट एट ऑल। कुछ लोग मैंने बहुत अपने साथ के लोग देखे हैं, दे अगर उनको पहले वो म्यूजिक करते होंगे, दे वुड लीव एवरीथिंग कि ओहो अब तो +1 +2 आ गया है, वी डू नॉट हैव टाइम फॉर ऑल दैट। यू कैन ऑलवेज मेक टाइम फॉर योर इंटरेस्ट। इतना भी कुछ मुझे नहीं लगता दिक्कत होती है। इफ यू आर कंसिस्टेंटली वर्किंग, चाहे आप दिन में रोज 6 घंटे भी करो, इट विल बी ऑब्वियसली वेरी सफिशिएंट फॉर यू। यू कैन ऑलवेज फाइंड टाइम, और उससे बहुत बेटर होता है। आई थिंक सिर्फ अपने आप को पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ करके और सिर्फ काम करने में, आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू डू यू एनी गुड। थोड़ा अपने इंटरेस्ट के साथ, जिसको म्यूजिक करना है वो म्यूजिक भी करे, जिसको डांस में रोज कीप गिविंग सम टाइम टुवर्ड्स योर इंटरेस्ट आल्सो। All work and no play makes Jack a dull boy. वो वाली बात है. Right. Exactly. This whole saying will never, it is always gonna be true. True. So, did you also use social media during your preparation? How was your social media usage? Not, I did not have any social media accounts. WhatsApp account था वो, क्योंकि तब ऑनलाइन टीचर से डाउट वगैरह सब व्हाट्सएप के थ्रू ही होते थे। सो व्हाट्सएप था मुझे मेरे पास, बट और कोई फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ नहीं था। और लेकिन मैं यूट्यूब बहुत देखती थी। आई एम अ बिग BTS फैन, सो आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ यूट्यूब देयर। तो कितना घंटे देखते थे? कितना घंटे? एन आवर, आई थिंक। एक दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2, किसी दिन बहुत ज्यादा भी हो जाता था, बट उसको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। लाइक मैंने ये सीखा है, जिस दिन ज्यादा भी हो जाए अगर यूट्यूब कंजम्पशन आपका या जो भी सोशल मीडिया कंजम्पशन, डोंट कीप डिवेलिंग इन ऑन दैट कि ओ आज इतना ज्यादा हो गया, मुझे अब काम कर इट टुमारो ना, मतलब ठीक है कल कर लेना, बट जस्ट मेक श्योर कि तुम कल कवर अप कर रहे हो. करेक्ट, आई एग्री कंप्लीटली. आई थिंक दैट वाज ग्रेट. एनीथिंग एल्स नियति जो आप बोलना चाहोगे? आई थिंक दैट वुड बी ऑल। मतलब just keep going, or you will be able to crack it. It's easy. But keep focusing on NCERT. This is something I should definitely say. NCERT is the key. और कुछ करने से कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ, लोग समझ नहीं रहे. No, this is a must. Seriously, I must say it. Golden rule for clearing NEET is NCERT. Okay, ठीक है. Okay then, I think it was great having you, Niyati. Thank you so much for taking out your precious time, and all the very best for your further counseling and college allotment. I hope आपको जो चाहिए वो मिल जाए finally, and hopefully we'll meet after 6 years in the field. Thank you so much for having me. It was great talking to you. Thank you. Bye. Bye. See you.